یونان میں کشتی ڈوبنے سے پاکستانیوں کی ہلاکت کا معاملہ زندہ بچ جانے والے 12 میں سے 10 افراد سے رابطہ ہو چکا FIA کا موقف سامنے آ گیا۔ معلومات کی فراہمی کے بعد 47 خاندانوں سے رابطہ ہو چکا ہے، جبکہ حادثے میں ملوث ایجنٹس کے خلاف مجموعی طور پر 6 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے عرفان ملک سے۔ جی عرفان ملک، آگاہ کیجیے گا۔ ڈائریکٹر FIA سرفراز ورک کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جو افسوسناک واقعہ یونان میں پیش آیا، اس میں جو زندہ بچ جانے والے 12 افراد میں سے 10 افراد کے ساتھ FIA کا رابطہ ہو چکا ہے اور ان کی مدد سے 47 ایسی فیملیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی جن کے پیارے جو ہیں وہ اس حادثے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ FIA کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جو لینڈ روٹ سامنے آیا ہے، جس کے تحت یہ لوگ جو ہیں وہ یونان پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، یونان پہنچے تھے، اس کے مطابق لاہور سے یا گجرانوالہ سے یا پاکستان سے یہ لوگ ویزا لیتے تھے دبئی کا یا لیبیا کا۔ ڈائریکٹ ویزا لینے کے بعد یہ لیبیا پہنچتے تھے، اس کے بعد یہ لوگ یونان کے لیے جو ہے وہ ٹریول کرتے تھے، اور اس دوران اس کو کیونکہ لینڈ روٹ کے اوپر کافی سختی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ سمندری راستہ اختیار کرتے تھے۔ سرفراز ورک کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب تک کی جو معلومات آئی ہیں اس کے مطابق 7 سے 5,000 ڈالر جو تھے وہ لیے جاتے تھے ایک شخص کو یونان پہنچانے کے لیے، اور اس کے لیے جو ایجنٹس تھے ان کے خلاف اب تک 6 مجموعی طور پہ FIR درج کی گئی ہیں، جس میں 4 جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ جو ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں وہ آلریڈی جو FIA کی کسٹڈی میں ہیں۔ دوسری جانب سرفراز ورک کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فیملیز جو ہیں وہ معاون ثابت نہیں ہو رہی FIA کے ساتھ، کیونکہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے یا پیارا ان کا اس حادثے میں جاں بحق ہوا ہے تو ان ایجنٹس کے خلاف کارروائی کروائیں، تو جو فیملیز ہیں وہ ان ایجنٹس کے خلاف کارروائی نہیں کرواتی۔ اسی وجہ سے ایسے واقعات جو رونما ہوتے ہیں، اور ان کا اب بھی کہنا ہے کہ ان فیملیز کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ سامنے آئیں، مقدمات درج کروائیں تاکہ ملزمان جو ہیں ان کو کڑی سزا ملے، لیکن ان فیملی کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دیگر جو بچوں ہیں ان کو بھی اسی راستے سے وہ بھجوانے کے خواہش مند ہیں اور اس کے لیے وہ کارروائی نہیں کرنا چاہتے۔ جی ٹھیک ہے عرفان ملک، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر میں منشیات فروشی کا گھناؤنا کاروبار جاری ہے، جبکہ اندرون بھاٹی گیٹ میں منشیات سرے عام بکنے لگیں۔ سٹی 42 نے واقعہ کے موبائل ویڈیوز حاصل کر لی ہیں، جبکہ جمیل عرف میلو اس کا بھائی جمشید عرف سونا مقامی منشیات فروش ہیں۔ مزید احوال جان لیتے ہیں اسرار خان سے۔ جی اسرار، آگاہ کیجیے گا۔ جی سٹی 42 کو موصول ہونے والی یہ موبائل ویڈیو اندرون بھاٹی گیٹ کی ہے، جہاں پر جمیل عرف میلو اور اس کا بھائی جمشید عرف سونا مقامی منشیات فروش ہیں۔ موبائل ویڈیو میں منشیات کی خریداری کرنے والوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو مذکورہ منشیات فروشوں کے گھر کے سامنے نظر آتے ہیں۔ اسی دوران باوردی ڈالفن اہلکار بھی موقع پر پہنچتے ہیں جو موبائل ویڈیو میں نظر آتے ہیں۔ منشیات فروش گھر کی چھت سے نذرانے کے طور پر کچھ پیسے پھینکتا ہے اور ڈالفن اہلکار زمین سے وہ پیسے اٹھا کر موقع سے واپس چلے جاتے ہیں۔ مقامی لوگوں کا یہ الزام ہے کہ دونوں منشیات فروش بھائی باقاعدہ پولیس کی سرپرستی میں منشیات کا گھناؤنا دھندا کرتے ہیں، اور منشیات کا دھندا کرنے والے دونوں بھائی پولیس کو باقاعدہ طور پر خرچہ دیتے ہیں۔ جی اسرار خان، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ پنجاب کی نگران کابینہ نے آئندہ مالی سال کے لیے 4 ماہ کا ٹیکس فری بجٹ منظور کر لیا۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے 70 ارب روپے مختص کرنے کی سفارش۔ صحت و تعلیم کے بجٹ میں 31% اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ زرعی ترقی اور کاشتکاروں کے لیے 47 ارب روپے منظور کیے گئے ہیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ ہوگا۔ سول سیکریٹریٹ میں کابینہ کے اجلاس میں بجٹ کی منظوری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی نگران وزراء کا کہنا تھا کہ پنجاب کے بجٹ کا حجم 17 ارب روپے ہے، جس میں 325 ارب روپے جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے مختص کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کے فارمولے کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا۔ تعلیم کے لیے 195 ارب، صحت کے لیے 183 ارب سے زائد مختص کیے گئے، جبکہ ٹارگٹ سبسڈی کی مد میں 70 ارب روپے کے عوام کو براہ راست ریلیف دیا جائے گا۔ 4 ماہ کا ٹوٹل جو لے آؤٹ ہے بجٹ کا، وہ بشمول آمدن اور اخراجات، وہ 1719 ارب روپے ہے، جس میں 881 ارب روپے ٹیکس ریسیٹس میں وہ وفاق کی طرف سے آئیں گی، جبکہ صوبہ پنجاب جو ہے وہ اپنے طور پر 194 ارب 194 بلین روپیز اکٹھے کرے گا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ
इस बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। सूबाई वज़ीर हसन तनवीर ने कहा कि सूबाई सतह पर IT पर आए तमाम टैक्सेस का खात्मा किया जा रहा है, जबकि ज़राअत के लिए 47.6 अरब रुपए की मराहत लाई जा रही हैं और स्टैंप ड्यूटी की शरह 1% ही रखी जाएगी, जबकि जारी तरक्याती स्कीमों को 50% बजट दे दिया जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उसकी 30% सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया गया, और जो मुलाजमीन जिनकी एज 80 से प्लस है उसकी सैलरी 20% को इंक्रीज़ किया गया इस बजट में। पंजाब में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो बिज़नेस है, जैसे IT से रिलेटेड बिज़नेस है, इंडस्ट्रीज है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब पे सेल टैक्स ख़त्म कर दिया गया। निगरान हुकूमत ने पंजाब के 4 माह का बजट मंजूर कर लिया, जिसमें आवाम को 70 अरब रुपए के रिलीफ मिलेंगे। कैमरामैन सैयद राज के हमरा आलिरा में सिटी 42। दूसरी जानिब पंजाब में OST होने वाले ऑफिसर्स पर ब्यूरोक्रेसी की मेहरबानियाँ निगरान हुकूमत की मंजूरी के बाद एग्जेक्टिव अलाउंस की हदबंदी ख़त्म कर दी गई, जबकि OST अफसरान को 6 माह की बजाय नई तकर्री तक एग्जेक्टिव अलाउंस मिलेगा। महकमे ख़जाना पंजाब का एग्जेक्टिव अलाउंस से मुतालिक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एग्जेक्टिव अलाउंस के लिए नए नोटिफिकेशन का इतलाक 20 अप्रैल से होगा। इससे कबल OST अफसरान को 6 माह का एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाता था। आपको बताएं कि पंजाब में OST होने वाले ऑफिसर्स पर ब्यूरोक्रेसी की मेहरबानियाँ निगरान हुकूमत की मंजूरी के बाद एग्जेक्टिव अलाउंस की हदबंदी ख़त्म कर दी गई है। OST अफसरान को 6 माह की बजाय नई तकर्री तक एग्जेक्टिव अलाउंस मिलेगा। महकमा ख़जाना पंजाब का एग्जेक्टिव अलाउंस से मुतालिक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एग्जेक्टिव अलाउंस के लिए नए नोटिफिकेशन का इतलाक 20 अप्रैल से होगा। इससे कबल OST अफसरान को 6 माह का एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाता था। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जुल्हज का चांद देखने के लिए जोनल हलाल कमेटी का इजलास जारी है, जबकि मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम की शिरकत। महकमे मौसमियात की टेक्निकल टीम भी कमेटी की मुआवनत के लिए मौजूद है। जी, जुल्हज का चांद देखने के लिए जोनल हलाल कमेटी का इजलास जारी है, जबकि मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए अकराम की शिरकत। महकमा मौसमियात की टेक्निकल टीम भी कमेटी की मुआवनत के लिए मौजूद है। जी, आपको बता रहे हैं जुल्हज का चांद देखने के लिए जोनल हलाल कमेटी का इजलास जारी है, जबकि मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए अकराम ने शिरकत की। महकमा मौसमियात की टेक्निकल टीम भी कमेटी की मुआवनत के लिए वहाँ मौजूद है। आपको बताएं कि जुल्हज का चांद देखने के लिए जोनल हलाल कमेटी का इजलास जारी, मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम की शिरकत। महकमे मौसमियात की टेक्निकल टीम भी कमेटी की मुआवनत के लिए मौजूद है। जुल्हज का चांद देखने के लिए जोनल हलाल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है, जबकि मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम की तरफ से शिरकत की गई है। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ते आटे का कहर बरकरार है, जबकि आटे की मिकदार कम और दिन ब दिन सार्फिन की तादाद में इजाफा होने लगा। गरीब तबका शदीद गर्मी और धूप में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर ख्वार होने लगा। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे का कहर बरकरार है और इसकी संगीनी दिन ब दिन बढ़ने लगी है। शदीद गर्मी और हब्स ने आटे के हसूल के लिए आई खवातीन और मर्द सार्फिन को ख्वार करके रख दिया है। शादमान, वहदत रोड, इशरा, समनाबाद, मुस्लिम टाउन समेत दीगर इलाकों में वाक़या यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का बेपनाह रश रहा और सार्फिन ने यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया पर मखसूस अफराद को नवाजने का इल्ज़ाम भी आयद किया। आटा भी इन्ना म्यारी नहीं होता, मिक्स करके ही खाना पैंदा कि लोग वाकफकार ने जो लै जाते हैं फिर जाके दुकानों से बेचते हैं। आटा नहीं मिलता, लोकल एरिया है, यहाँ जाते हैं तो वो आटा नहीं होता, बैठ बैठ के सारी दिहाड़ी गुजर जाती है। शहरियों ने कहा कि बड़े यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की थोड़ी बहुत मिकदार फिर भी फ्राहम की जाती है, लेकिन गरीबों की आबादियों में बने यूटिलिटी स्टोर्स सस्ते आटे और दीगर अशियाए ज़रूरिया से खाली पड़े हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42 लाहौर। ईद करीब आते ही सब्जियों की कीमतों को तड़का लग गया। प्याज सरकारी निर्ख 57, ओपन मार्केट में 70 रुपये किलो में फ़रोख्त, टमाटर 65, आलू 85 रुपये किलो बिकने लगा। जबकि फल भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है। सेब 400 रुपये किलो, केला 350 रुपये दर्जन फरोख्त होने लगा। आम और आलू बुखारा 350 रुपये किलो तक जा पहुंचा। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 57 रुपये, बाजार में 70 रुपये। टमाटर दर्जा अव्वल सरकारी कीमत 50 रुपये, बाजारों में 65 रुपये। लहसुन देसी सरकारी निर्ख 195, जबकि बाजारों में 250 रुपये किलो फरोख्त हुआ। अदरक सरकारी रेट 750 रुपये, मार्केट में 840 रुपये। सब्ज मिर्च अव्वल सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 105
105 रुपए। ओपन मार्केट में 115 रुपए, आलू 70 रुपए की बजाय बाजारों में 85 रुपए किलो बेचे गए। लीमू देसी सरकारी कीमत 175 रुपए, बाजार में 190। शिमला मिर्च सरकारी निर्ख 90 रुपए, ओपन मार्केट में 105 रुपए। बैंगन सरकारी रेट 60 रुपए किलो, जबकि ओपन मार्केट में 70 रुपए किलो फरोख्त हुए। बंद गोभी 40 रुपए के बरअक्स 50, भिंडी 90 रुपए की बजाय 100 रुपए किलो बेची गई। शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। लेस्को को 430 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग जारी। ज़राए के मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब 4923 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 4500 मेगावाट की जा रही है। इस तरह 430 मेगावाट का फर्क होने की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। शहर में 2, जबकि मज़ाफात और हाई लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 3 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। फरहत शहजादी के खिलाफ नैब तहकीकात का मामला। नैब लाहौर ने जी मंगोरिया हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया है। नैब लाहौर ने गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी से मज़कूरा सोसाइटी बारे तफसीलात मांग ली। ज़राए के मुताबिक फरहत शहजादी की हाउसिंग सोसाइटी का NOC जारी हुआ या नहीं, तफसीलात तलब हो गई। नैब ने इस्तफसार किया कि NOC जारी होने की सूरत में कानूनी हैसियत की तफसीलात फराहम की जाए। फरहत शहजादी के खिलाफ मुतासरीन नैब लाहौर में दरख्वास्तें जमा करवा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक फरहत शहजादी ने सोसाइटी में प्लाटों के नाम पर शहरियों से करोड़ों रुपए बटोरे। रिकॉर्ड के मुताबिक फरहत शहजादी सोसाइटी की CEO हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मालिक मकान और किरायादार के तनाज़े का 27 साल के बाद फैसला जारी कर दिया। अदालत ने किरायादार की फौरी बेदखली का हुक्म दे दिया। यतीम बच्चों को बिलआखिर इंसाफ मिल गया है। साइल के इंतकाल के बाद मालिक मकान के हक में दिए गए फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया गया। जस्टिस अनवार हुसैन ने मियां बिलाल की दरखास्त पर फैसला जारी किया। दरखास्त गुजार की जानब से राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट ने केस की पैरवी की। राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट के मुताबिक भगवानपुरा में मियां बिलाल ने 1995 में मोहम्मद रजाक से 5 मरले का मकान फरोख्त करने का मुआहदा किया। मोहम्मद रजाक ने मकान की मलकियत का दावा किया, जो 1995 में ही खारिज हो गया। इसी साल मियां बिलाल ने मोहम्मद रजाक के खिलाफ बेदखली का दावा किया था, जो खारिज हो गया। ना तो उसने किराया दिया और कब्जा करके बैठ गया। उसके खिलाफ बेदखली की दरख्वास्त दायर हुई। वो रेंट कंट्रोल ने कहा कि ये जो है अब्दुल रजाक, इसको मालिक डिक्लेयर कर दिया। उसके खिलाफ अपील दायर हुई, वो भी खारिज हो गई। राजा अब्दुर्रहमान एडवोकेट ने सिटी 42 से गुफ्तगू में कहा, मियां बिलाल की किरायादार की बेदखली की दरख्वास्त 1999 में खारिज हो गई। केस लड़ते लड़ते मालिक मकान इंतकाल कर गया। जज साहब ने बहुत खूबसूरत लिखा, जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने, वंस ए टेनेंट इज़ ऑलवेज ए टेनेंट। और वो अपनी मलकियत जो है वो बुरी तरह नाकाम हुए। उनकी एविडेंस भी मातहत अदालत में क्लोज हो गई हुई थी। जिरा का हक भी ख़त्म हो गया था। 27 साल बाद फैसला हक में होने पर मालिक मकान के बच्चों गुलाम मुर्तज़ा और शाजिया ने खुशी का इजहार किया। मैं वज़ीर आला से गुजारिश करना चाहती हूँ कि हाई कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दे दिया है और वो हमारी मदद करे और पुलिस के साथ हमें वो मकान खाली करा कर दे। हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारा मकान वापस हमको मिल गया है और राजा साहब ने हमारे साथ बहुत तामन किया है और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला साहब और हुकूमत से कि मेहरबानी फरमाकर इनको जो है मकान खाली करा के दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालतों के फैसलों को कलदम करार दिया।